ہر پل یہ ڈرامہ اپنے اینڈنگ پر پہنچ رہا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شانی اور انمول کے درمیان جو محبت کا رشتہ قائم ہونے والا تھا، لیکن اس کے اندر کمال احمد کی انٹری نے پھر سے دراڑ پیدا کر دی، اور کمال احمد یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح شانی اور انمول کا رشتہ ٹوٹ جائے اور پھر وہ اس سے شادی کر لے۔ سارم کی بھی یہی کوشش رکھتی ہے، وہ بار بار انمول سے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن انمول نے اس کو بھی صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا، اور انمول نے بھی اس کو بھی انکار کر دیا کہ میں تم سے اب کبھی شادی نہیں کر سکتی، میں اکیلی ہی زندگی گزاروں گی۔ محترم سامعین، اگلے قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب انمول کو لینے کے لیے شانی اس کے گھر جاتا ہے اور اس کا والد بھی وہاں پر آ جاتا ہے تو شانی بڑا پریشان دکھائی دیتا ہے، اور اس کا صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ شانی تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، اب انمول بیٹی تمہارے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی، نہ تمہارے گھر جائے گی، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، لہذا دوبارہ اس گھر میں آنے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ شانی بہت زیادہ غمزدہ اور افسردہ دکھائی دیتا ہے، وہ گھر آتا ہے اور روتا رہتا ہے، والدین بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہارے پچھلے گناہوں کا نتیجہ ہے، بار بار ہم نے تمہیں یہی بات بتائی تھی کہ سیدھے راستے پر چلو، نیکی کے راستے پر چلو، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، لیکن برائی کا راستہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل اس بات کا خیال نہیں رکھتی ہے، والدین کی کسی بات کی نصیحت پر عمل نہیں کرتی ہے، جس کا نتیجہ آج تم بھگت رہے ہو۔ محترم صاحبین، اگلی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب شانی انمول کے لینے کے لیے گھر جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کی بہن بشرا انمول کو کہتی ہے کہ تم نے شانی بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں شانی کو معاف کر دینا چاہیے، اگرچہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے لیکن آج وہ تمہارے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا۔ تو انمول کہتی ہے کہ میں نے بھی قید کے دوران اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، میرے زمانے کے اندر میری بدنامی اور رسوائی ہو رہی ہے، میرا والد میرے لیے پریشان ہے، میری بہن بھی گھر میں اکیلی پریشان رہتی ہے، لیکن اس نے میری کسی بات کو نہیں لیا اور کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، آج میں کیسے اس کو معاف کر دوں؟ مجھے پل پل شانی کے دیے ہوئے ظلم و ستم آج یاد آ رہے ہیں، آج معاشرے کے اندر زمانے میں میری رسوائیاں ہو رہی ہیں، آج لوگوں کے درمیان میرے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو میں کس طرح شانی کو معاف کر سکتی ہوں؟ لہذا وہ اپنی بہن بشرا کو کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اب شانی کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی، لیکن بشرا بھی بار بار اس کو یہی کہتی رہتی ہے کہ شانی جیسا اچھا شوہر تمہیں دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا، تم نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گھر والے بھی اچھے ہیں اور تمہیں منانے کے لیے آئے تھے، اور شانی بھی خود بھی آیا تھا اور بار بار آ رہا ہے۔ ادھر سے شانی مسجد میں جب جاتا ہے وہاں پر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ صدیقی صاحب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شانی اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو صدیقی صاحب کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ آخرکار وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شانی جیسا اچھا شوہر انمول کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اگرچہ شانی کا ماضی بہت ہی زیادہ بھیانک گزرا ہے، لیکن آج شانی ایک اچھا انسان بن چکا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نیک انسان ہے، لہذا وہ گھر آتا ہے اور انمول سے کہتا ہے کہ تمہیں شانی کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنی چاہیے، شانی ایک اچھا انسان ہے اور تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن انمول اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے کہ میں شانی کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی شانی کے گھر جاؤں گی۔ محترم صاحبین، اگلی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے اریبہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس طرح شانی اور انمول کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، انمول شانی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی ہے، تو اس کو یہ موقع غنیمت لگتا ہے، وہ فوراً شانی کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تو پہلے بھی تمہیں کہتی تھی کہ انمول تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، وہ تمہیں کبھی خوشیاں نہیں دے سکتی، آج بھی تمہاری جو حالت ہے اسی انمول کی وجہ سے ہے، آج تم پریشان اور جو دکھی دکھائی دے رہے ہو اسی انمول کی ہی وجہ سے ہے، لہذا تمہیں انمول کو بھول جانا چاہیے، اس کو ساتھ زندگی کا ناطہ ختم کر دینا چاہیے، آج بھی اگر چاہتے ہو تو ہم دوبارہ سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شانی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، اچانک وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اریبہ تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ دوبارہ خیال نہ لانا، میں انمول اگرچہ میرے ساتھ رہے نہ رہے یا یعنی میری اس کے ساتھ زندگی نہ بنے، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ اریبہ یہ سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، اگلے قسط کے اندر واقعات کے اندر ایک نیا ٹوسٹ یہ بھی آنے والا ہے کہ شانی اور انمول کے درمیان پھر سے محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کمال صاحب کا انجام کیا ہوگا
आप अपनी राय का इजहार लाजमी कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी ड्रामा रिव्यू के बारे में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मेहरबानी भी होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली कीज नहायत दिलचस्प होने जा रही है, नहायत इमोशनल वाक़यात होने वाले हैं। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि किस तरह शानी जब अनमोल को मनाने के लिए उसके घर के सामने जाता है और अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनमोल उसको माफ़ नहीं करती और उसको कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मेरा और तुम्हारा वास्ता अब कोई नहीं रहा। शानी उसको कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं तो वो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन अनमोल कहती है कि कैद के दौरान मैं जब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया करती थी, लेकिन तुम पर किसी बात का भी असर नहीं होता था, लिहाजा अब तुम चले जाओ जहाँ से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे घर कभी अब वापस नहीं आ सकती। जो ही शानी घर में दाखिल होता है तो पीछे से सिद्दीकी साहब भी आ जाते हैं। जब शानी और अनमोल को इस हालत में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं और शानी से गुस्से में कहते हैं कि तुम बेहतर यही है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। अनमोल बेटी अब तुम्हारे साथ कभी तुम्हारे साथ हंसी खुशी नहीं जिंदगी गुजार सकती, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दोबारा इस घर में वापस मत आना। शानी सर झुकाकर वापस चला जाता है और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैंने भी जितने भी जुल्म और सितम किए हैं आज उनका सामना मुझे करना पड़ रहा है। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और मुसीबतें और परेशानियाँ आज हैं वो मेरे माजी की वजह से हैं। अल्लाह ताला से वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि अनमोल की बहन बुशरा अनमोल को ये बात समझाती है कि शानी भाई से तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था, तुम्हें शानी भाई को माफ़ कर देना चाहिए, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शानी जैसा शोहर मिला है, लिहाजा तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मैंने भी कई बार शानी से कहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरे वालिद परेशान हो रहे हैं, मेरी बहन अकेली है, लेकिन उसको उस पर मेरी किसी बात का भी असर नहीं हुआ था। आज मैं कैसे उसको माफ़ कर दूं? उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और मुसीबतें आई हैं, आज ज़माने के सामने उसी की वजह से मुझे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों की बातें सुन रही हूँ तो ये जो दाग उसने मेरे दामन पर लगाया है, मैं किस तरह उसको भुला सकती हूँ? अनमोल गुस्से में होती है और बुशरा को कहती है कि मैं अब कभी भी शानी के साथ उसके घर दोबारा कभी उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले केस में आप ये भी देखेंगे कि जब शानी मस्जिद में जाता है और वहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा होता है कि साहब उसको देखते हैं कि शानी अपने गुनाहों पर बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा होता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो सदीकी साहब का दिल भी नर पड़ जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि शानी अब बदल चुका है, शानी अपने गुनाहों पर नादिम भी है। सिद्दीकी साहब जब घर आते हैं तो अनमोल को कहते हैं कि अनमोल, तुम्हें अब शानी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शानी ने अगरचे बहुत तुम्हारे साथ जुल्म और सितम किया है, उसका बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो तुम्हारा शौहर है, वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, लेकिन अनमोल का इस बातों पर कोई असर नहीं होता। मोहतरम साहबीन, आइंदा आने वाले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब रीबा को इस बात का इल्म होता है कि शानी और अनमोल के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, अनमोल शानी से रूठ कर अपने घर चली गई है, तो वो शानी के पास आकर शानी से कहती है, उसको ये बहुत बड़ा मौका मिल जाता है कि किसी तरह वो शानी के दिल को फिर से नर्म कर सके और अपने दिल में मोहब्बत का चिराग जला सके। लेकिन शानी से जब वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अनमोल तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं रखती, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अनमोल तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। आज इसका सबूत तुम्हें मिल गया है कि अनमोल तुम्हें छोड़कर अकेला चली गई है। शानी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अनमोल के बारे में कुछ मत कहो, अगरचे अनमोल मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए या ना आए। रीबा शानी से कहती है कि बेहतर यही है कि तुम अनमोल को अब अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, अब हम दोबारा दोबारा भी वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिस तरह हम पहले थे, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। तो लेकिन शानी उसको इनकार कर देता है। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि कमाल साहब सदीकी साहब के घर आते हैं और सदीकी साहब से कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि शानी एक अच्छा लड़का नहीं है,
लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। आज आपको पता चल गया कि शानी ने अनमोल के साथ क्या किया है। सिद्दीकी साहब कमाल अहमद से कहते हैं कि ये हमारे घर का अपना मामला है, आप इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान शानी की भी एंट्री हो जाती है। जब कमाल अहमद को अनमोल के घर देखता है तो वो ये सारा मामला समझ जाता है कि ये सारा जाल फैलाया हुआ कमाल अहमद का है। वो कमाल अहमद उसके साथ झगड़ा करता है। कमाल अहमद शानी को धमकी देता है कि अगर तुमने अनमोल को ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। क्या आप समझते हैं कि शानी और अनमोल को फिर से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? अनमोल को शानी के साथ घर वापस जाना चाहिए, या अनमोल को शानी से अलहदगी इख्तियार कर लेना चाहिए? क्या शानी और अरीफा की फिर से शादी हो सकती है? क्या सारिम और अनमोल की फिर से शादी हो सकती है? इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। आपसे एक अहम गुजारिश भी है, ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम साहमीन, आपने देखा होगा कि जब शानी अनमोल को मनाने के लिए उसके घर जाता है तो अनमोल उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी मोहब्बत का इकरार भी नहीं करती। शानी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जो ही शानी घर में दाखिल होता है उसी दौरान उसके पीछे अनमोल का वालिद भी आ जाता है और वो शानी से कहता है कि अब तुम्हारे साथ अनमोल कभी घर नहीं जाएगी, लिहाजा तुम बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ। शानी घर जाता है, वहाँ पर रोता रहता है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और अनमोल को फिर से मेरी ज़िंदगी में लेकर आए। शानी समझता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अल्लाह ताला ही मुझे माफ़ कर सकता है। इसके बाद अनमोल की बहन बुशरा अनमोल को ये बात समझाती है कि शानी भाई से तुमने अच्छा रवैया नहीं रखा। हालांकि शानी भाई तुमको मनाने आए थे, अपनी गलती का भी इतराफ़ कर रहे थे। शानी भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। शानी सारिम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो तुम्हारा हरदम ख्याल भी रखता है और तुम्हारे लिए पागल हुआ जा रहा है। लेकिन अनमोल से कहती है कि आपको चाहिए कि आप शानी के साथ घर वापस चली जाएं, उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अनमोल कहती है कि मैं अब शानी को कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। तुम क्या समझती हो कि शानी का ये गुनाह जो था इतना छोटा सा है कि जो उसने मुझ पर जो जुल्म और सितम किए, जो दुख दिए, मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, फरियाद करती रही, लेकिन उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ था। कैद के दौरान मुझ पर जो अजियतें हुई, इस वाक़े के दौरान बाबा और तुम्हारी जो हालत हुई, उसको बयान करना भी काबिल यकीन नहीं है। अनमोल चीख चीख कर कहती है कि मैं शानी को अब अपनी ज़िंदगी में कभी लेकर नहीं आऊँगी। अनमोल पर किसी बात का असर नहीं होता। इसके बाद आप मोहतरम सामीन अगली किस्त में देखेंगे कि अरीबा को जब इस बात का इल्म होता है कि अनमोल शानी को छोड़कर चली गई है तो उसको ये मौका गनीमत लगता है। वो फिर से शानी से मिलने के लिए आती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अनमोल तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करती, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। आज इसका बात का सबूत तुम्हें मिल गया है। अनमोल तुम्हें छोड़कर चली गई है, लिहाजा तुम अनमोल को अपने दिल से अब निकाल दो और मैं ये चाहती हूँ कि हम फिर से दोबारा नई ज़िंदगी शुरू करें। यानी गुस्से में आ जाता है और रीपा से कहता है कि अनमोल चाहे मेरी ज़िंदगी में आए दोबारा या ना आए, लेकिन तुम ये सोचना छोड़ दो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से दोबारा ज़िंदगी गुजारूंगा या तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। ये तुम्हारी सिर्फ वहम ख्याली है, लिहाजा इस बात को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। रीवा डर के मारे चली जाती है। वो शानी को अपनी मोहब्बत का फिर से यकीन दिलाना चाहती है। अनमोल का वालिद जब शानी को मस्जिद में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हुए देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखता है तो उसका दिल नर्म पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि शानी अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा है। लिहाजा वो घर आता है और अनमोल को समझाता है कि तुमको शानी को माफ़ कर देना चाहिए, उसके साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शानी ने जो गुनाह किया था उसको भूल जाना चाहिए। अनमोल का वालिद अनमोल से कहता है कि तुम्हें शानी को माफ़ कर देना चाहिए। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले केस में आप ये भी देखेंगे कि कमाल साहब अनमोल से मिलने आता है। वो अनमोल के वालिद से बातचीत करता है और पहले ही कहता है कि मैंने आपको बताया था कि शानी अच्छा इंसान नहीं है। इसी दौरान शानी भी वहाँ पर आ जाता है। जब कमाल अहमद को वहाँ पर वो देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब किया धरा कमाल अहमद का है। दोनों के दरमियान झगड़ा भी हो जाता है। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा और कमाल अहमद शानी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा। शानी इस बात से नहीं डरता है। मोहतरम सामीन, आने वाली किस्त में अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि इसका अंजाम कैसा होना चाहिए। क्या अनमोल को शानी के साथ वापस जाना चाहिए और उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहिए,
हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने जा रही है। नहायत इमोशनल वाक़यात होने वाले हैं। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि किस तरह शानी जब अनमोल को मनाने के लिए उसके घर के सामने जाता है और अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनमोल उसको माफ़ नहीं करती और उसको कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मेरा और तुम्हारा वास्ता अब कोई नहीं रहा। शानी उसको कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं तो वो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन अनमोल कहती है कि कैद के दौरान मैं जब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया करती थी, लेकिन तुम पर किसी बात का भी असर नहीं होता था, लिहाजा अब तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे घर कभी अब वापस नहीं आ सकती। जो ही शानी घर में दाखिल होता है तो पीछे से सिद्दीकी साहब भी आ जाते हैं। जब शानी और अनमोल को इस हालत में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं और शानी से गुस्से में कहते हैं कि तुम बेहतर यही है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। अनमोल बेटी अब तुम्हारे साथ कभी तुम्हारे साथ हंसी खुशी नहीं जिंदगी गुजार सकती, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दोबारा इस घर में वापस मत आना। शानी सर झुकाकर वापस चला जाता है और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैंने भी जितने भी जुल्म और सितम किए हैं आज उनका सामना मुझे करना पड़ रहा है। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और मुसीबतें और परेशानियां आज हैं वो मेरे माजी की वजह से हैं। अल्लाह ताला से वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि अनमोल की बहन बुशरा अनमोल को ये बात समझाती है कि शानी भाई से तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था, तुम्हें शानी भाई को माफ़ कर देना चाहिए, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शानी जैसा शोहर मिला है, लिहाजा तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मैंने भी कई बार शानी से कहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरे वालिद परेशान हो रहे हैं, मेरी बहन अकेली है, लेकिन उसको उस पर मेरी किसी बात का भी असर नहीं हुआ था। आज मैं कैसे उसको माफ़ कर दूं? उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और मुसीबतें आई हैं, आज ज़माने के सामने उसी की वजह से मुझे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों की बातें सुन रही हूँ, तो ये जो दाग उसने मेरे दामन पर लगाया है, मैं किस तरह उसको भुला सकती हूँ? अनमोल गुस्से में होती है और बुशरा को कहती है कि मैं अब कभी भी शानी के साथ उसके घर दोबारा कभी उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब शानी मस्जिद में जाता है और वहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा होता है कि साहब उसको देखते हैं कि शानी अपने गुनाहों पर बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा होता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो सिद्दीकी साहब का दिल भी नर्म पड़ जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि शानी अब बदल चुका है, शानी अपने गुनाहों पर नादिम भी है। सिद्दीकी साहब जब घर आते हैं तो अनमोल को कहते हैं कि अनमोल, तुम्हें अब शानी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शानी ने अगरचे बहुत तुम्हारे साथ जुल्म और सितम किया है, उसका बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो तुम्हारा शौहर है, वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, लेकिन अनमोल का इस बातों पर कोई असर नहीं होता। मोहतरम साहबीन, आइंदा आने वाले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब रीबा को इस बात का इल्म होता है कि शानी और अनमोल के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, अनमोल शानी से रूठ कर अपने घर चली गई है, तो वो शानी के पास आकर शानी से कहती है, उसको ये बहुत बड़ा मौका मिल जाता है कि किसी तरह वो शानी के दिल को फिर से नर्म कर सके और अपने दिल में मोहब्बत का चिराग जला सके। लेकिन शानी से जब वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अनमोल तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं रखती, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अनमोल तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। आज इसका सबूत तुम्हें मिल गया है कि अनमोल तुम्हें छोड़कर अकेला चली गई है। शानी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अनमोल के बारे में कुछ मत कहो, अगरचे अनमोल मेरे ज़िंदगी में दोबारा आए या ना आए। रीबा शानी से कहती है कि बेहतर यही है कि तुम अनमोल को अब अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, अब हम दोबारा दोबारा भी वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिस तरह हम पहले थे, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। तो लेकिन शानी उसको इनकार कर देता है। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि कमाल साहब सिद्दीकी साहब के घर आते हैं और सिद्दीकी साहब से कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि शानी एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। आज आपको पता चल गया कि शानी ने अनमोल के साथ क्या किया है। सिद्दीकी साहब कमाल अहमद से कहते हैं कि ये हमारे घर का अपना मामला है, आप इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान शानी की भी एंट्री हो जाती है। जब कमाल अहमद को अनमोल के घर देखता है तो वो ये सारा मामला समझ जाता है कि ये सारा जाल फैलाया हुआ कमाल अहमद का है
वो कमाल अहमद उसके साथ झगड़ा करता है। कमाल अहमद शानी को धमकी देता है कि अगर तुमने अनमोल को ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। क्या आप समझते हैं कि शानी और अनमोल को फिर से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? अनमोल को शानी के साथ घर वापस जाना चाहिए या अनमोल को शानी से अलहदगी इख्तियार कर लेना चाहिए? क्या शानी और अरीबा की फिर से शादी हो सकती है? क्या सारिम और अनमोल की फिर से शादी हो सकती है? इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करें। आपसे एक अहम गुजारिश भी है, ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा अपने एंडिंग पर पहुंच रहा है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि शानी और अनमोल के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कायम होने वाला था, लेकिन उसके अंदर कमाल अहमद की एंट्री ने फिर से दरार पैदा कर दी। और कमाल अहमद यही चाहता है कि किसी तरह शानी और अनमोल का रिश्ता टूट जाए और फिर वो उससे शादी कर ले। सारिम की भी यही कोशिश रहती है, वो बार बार अनमोल से मिलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अनमोल ने उसको भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया और अनमोल ने भी उसको भी इनकार कर दिया कि मैं तुमसे अब कभी शादी नहीं कर सकती, मैं अकेली ही ज़िंदगी गुजारूंगी। मोहतरम सामीन, अगले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब अनमोल को लेने के लिए शानी उसके घर जाता है और उसका वालिद भी वहाँ पर आ जाता है तो शानी बड़ा परेशान दिखाई देता है और उसका सदीकी साहब कहते हैं कि शानी, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब अनमोल बेटी तुम्हारे साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, ना तुम्हारे घर जाएगी। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, लिहाजा दोबारा इस घर में आने की हिम्मत भी ना करना। शानी बहुत ज़्यादा गमज़दा और अफसरदा दिखाई देता है। वो घर आता है और रोता रहता है। वालिदैन भी उसको समझाते हैं कि ये तुम्हारे पिछले गुनाहों का नतीजा है। बार बार हमने तुम्हें यही बात बताई थी कि सीधे रास्ते पर चलो, नेकी के रास्ते पर चलो, इसका अंजाम अच्छा होता है। लेकिन बुराई का रास्ता हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल इस बात का ख्याल नहीं रखती है, वालिदैन की किसी बात की नसीहत पर अमल नहीं करती है, जिसका नतीजा आज तुम भुगत रहे हो। मोहतरम साहिबीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब शानी अनमोल के लेने के लिए घर जाता है और वहाँ से चला जाता है तो उसकी बहन बुशरा अनमोल को कहती है कि तुमने शानी भाई के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें शानी को माफ़ कर देना चाहिए। अगरचे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन आज वो तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ रहा था। तो अनमोल कहती है कि मैंने भी कैद के दौरान उसके सामने हाथ जोड़े थे कि मुझे छोड़ दो, मेरे ज़माने के अंदर मेरी बदनामी और रुसवाई हो रही है, मेरा वालिद मेरे लिए परेशान है, मेरी बहन भी घर में अकेली परेशान रहती है। लेकिन उसने मेरी किसी बात को नहीं लिया और किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आज मैं कैसे उसको माफ़ कर दूं? मुझे पल पल शानी के दिए हुए जुल्म और सितम आज याद आ रहे हैं। आज माशरे के अंदर ज़माने में मेरी रुसवाइयाँ हो रही हैं, आज लोगों के दरमियान मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो मैं किस तरह शानी को माफ़ कर सकती हूँ? लिहाजा वो अपनी बहन बुशरा को कहती है कि मैं कभी भी अब शानी के घर कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन बुशरा भी बार बार उसको यही कहती रहती है कि शानी जैसा अच्छा शौहर तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल सकता। तुमने देखा होगा कि उसके घर वाले भी अच्छे हैं और तुम्हें मनाने के लिए आए थे, और शानी भी खुद भी आया था और बार बार आ रहा है। उधर से शानी मस्जिद में जब जाता है वहाँ पर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है और अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है। ये सब कुछ सदीकी साहब देख रहा होता है कि शानी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम हो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो सदीकी साहब का दिल भी नर्म पड़ जाता है। आखिरकार वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शानी जैसा अच्छा शौहर अनमोल को कभी नहीं मिल सकता। अगरचे शानी का माजी बहुत ही ज़्यादा भयानक गुजरा है, लेकिन आज शानी एक अच्छा इंसान बन चुका है, 5 वक्त का नमाजी है, नेक इंसान है। लिहाजा वो घर आता है और अनमोल से कहता है कि तुम्हें शानी के साथ दोबारा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। शानी एक अच्छा इंसान है और तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है कि मैं शानी को कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी शानी के घर जाऊँगी। मोहतरम साहिबीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे अरीबा को जब इस बात का इल्म होता है कि किस तरह शानी और अनमोल के दरमियान अलहदगी हो गई है, शानी अनमोल शानी का घर छोड़कर यहाँ से चली गई है, तो उसको ये मौका गनीमत लगता है। वो फ़ौरन शानी के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तो पहले भी तुम्हें कहती थी कि अनमोल तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, वो तुम्हें कभी खुशियाँ नहीं दे सकती। आज भी तुम्हारी जो हालत है इसी अनमोल की वजह से है। आज तुम परेशान और जो दुखी दिखाई दे रहे हो इसी अनमोल की ही वजह से है। लिहाजा तुम्हें अनमोल को भूल जाना चाहिए, उसको साथ ज़िंदगी का नाता ख़त्म कर देना चाहिए। आज भी अगर चाहते हो तो हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
शानी ये बातें सुन रहा होता है, अचानक वो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि अरीबा, तुम कभी भी अपने दिल में ये दोबारा ख्याल ना लाना, मैं अनमोल अगरचे मेरे साथ रहे ना रहे या यानी मेरी उसके साथ ज़िंदगी ना बने, लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अरीबा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो मोहतरम सामीन, अगले किस के अंदर वाक़यात के अंदर एक नया ट्विस्ट ये भी आने वाला है कि शानी और अनमोल के दरमियान फिर से मोहब्बत पैदा हो सकती है। और इसके अलावा कमाल साहब का अंजाम क्या होगा, आप अपनी राय का इजहार लाजमी कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी ड्रामा रिव्यू के बारे में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मेहरबानी भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने जा रही है। नहायत इमोशनल वाक़यात होने वाले हैं। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि किस तरह शानी जब अनमोल को मनाने के लिए उसके घर के सामने जाता है और अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनमोल उसको माफ़ नहीं करती और उसको कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मेरा और तुम्हारा वास्ता अब कोई नहीं रहा। शानी उसको कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं तो वो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन अनमोल कहती है कि कैद के दौरान मैं जब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया करती थी, लेकिन तुम पर किसी बात का भी असर नहीं होता था, लिहाजा अब तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे घर कभी अब वापस नहीं आ सकती। जो ही शानी घर में दाखिल होता है तो पीछे से सिद्दीकी साहब भी आ जाते हैं। जब शानी और अनमोल को इस हालत में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं और शानी से गुस्से में कहते हैं कि तुम बेहतर यही है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। अनमोल बेटी अब तुम्हारे साथ कभी तुम्हारे साथ हंसी खुशी नहीं ज़िंदगी गुजार सकती, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दोबारा इस घर में वापस मत आना। शानी सर झुकाकर वापस चला जाता है और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैंने भी जितने भी जुल्म और सितम किए हैं आज उनका सामना मुझे करना पड़ रहा है। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और मुसीबतें और परेशानियाँ आज हैं वो मेरे माजी की वजह से हैं। अल्लाह ताला से वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि अनमोल की बहन बुशरा अनमोल को ये बात समझाती है कि शानी भाई से तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था, तुम्हें शानी भाई को माफ़ कर देना चाहिए, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शानी जैसा शोहर मिला है, लिहाजा तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मैंने भी कई बार शानी से कहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरे वालिद परेशान हो रहे हैं, मेरी बहन अकेली है, लेकिन उसको उस पर मेरी किसी बात का भी असर नहीं हुआ था। आज मैं कैसे उसको माफ़ कर दूं? उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख और मुसीबतें आई हैं, आज ज़माने के सामने उसी की वजह से मुझे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों की बातें सुन रही हूँ तो ये जो दाग उसने मेरे दामन पर लगाया है, मैं किस तरह उसको भुला सकती हूँ। अनमोल गुस्से में होती है और बुशरा को कहती है कि मैं अब कभी भी शानी के साथ उसके घर दोबारा कभी उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब शानी मस्जिद में जाता है और वहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा होता है कि साहब उसको देखते हैं कि शानी अपने गुनाहों पर बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा होता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो सिद्दीकी साहब का दिल भी नर्म पड़ जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि शानी अब बदल चुका है, शानी अपने गुनाहों पर नादिम भी है। सिद्दीकी साहब जब घर आते हैं तो अनमोल को कहते हैं कि अनमोल, तुम्हें अब शानी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शानी ने अगरचे बहुत तुम्हारे साथ जुल्म और सितम किया है, उसका बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो तुम्हारा शौहर है, वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, लेकिन अनमोल का इस बातों पर कोई असर नहीं होता। मोहतरम साहिबीन, आइंदा आने वाले किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब रीबा को इस बात का इल्म होता है कि शानी और अनमोल के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, अनमोल शानी से रूठ कर अपने घर चली गई है, तो वो शानी के पास आकर शानी से कहती है, उसको ये बहुत बड़ा मौका मिल जाता है कि किसी तरह वो शानी के दिल को फिर से नर्म कर सके और अपने दिल में मोहब्बत का चिराग जला सके। लेकिन शानी से जब वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अनमोल तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं रखती, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अनमोल तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। आज इसका सबूत तुम्हें मिल गया है कि अनमोल तुम्हें छोड़कर अकेला चली गई है। शानी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अनमोल के बारे में कुछ मत कहो,
अगरचे अनमोल मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए या ना आए। रीबा शानी से कहती है कि बेहतर यही है कि तुम अनमोल को अब अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अब हम दोबारा भी वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिस तरह हम पहले थे। मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। तो लेकिन शानी उसको इनकार कर देता है। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस के अंदर आप ये भी देखेंगे कि कमाल साहब सदीकी साहब के घर आते हैं और सदीकी साहब से कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि शानी एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। आज आपको पता चल गया कि शानी ने अनमोल के साथ क्या किया है। सिद्दीकी साहब कमाल अहमद से कहते हैं कि ये हमारे घर का अपना मामला है, आप इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान शानी की भी एंट्री हो जाती है। जब कमाल अहमद को अनमोल के घर देखता है तो वो ये सारा मामला समझ जाता है कि ये सारा जाल फैलाया हुआ कमाल अहमद का है। वो कमाल अहमद उसके साथ झगड़ा करता है। कमाल अहमद शानी को धमकी देता है कि अगर तुमने अनमोल को ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। क्या आप समझते हैं कि शानी और अनमोल को फिर से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? अनमोल को शानी के साथ घर वापस जाना चाहिए या अनमोल को शानी से अलहदगी इख्तियार कर लेना चाहिए? क्या शानी और अरीबा की फिर से शादी हो सकती है? क्या सारिम और अनमोल की फिर से शादी हो सकती है? इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है? आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। आपसे एक अहम गुजारिश भी है, ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।